Okay, so gentlemen, the topic for today is TCP communication process, and this topic comes under the title of transport layer. And we have seen in the transport layer, that this layer has two important protocols. One is called TCP and the other one is called UDP. We have seen in the TCP case that this protocol, if employed by the application layer, give you a reliable connection. It do the flow control. It performs the multiplexing so that multiple applications can use the same IP layer. It performs the demultiplexing so that the packets or the network which provides the data should go to the respective applications. So that is again a very important task. And probably the last one is ordered delivery. These are few of the features of the TCP. Ordered, why? Because you have seen in the TCP header, you have seen that it has the sequence number. And because of the sequence number, you can order the application get the ordered bytes or the segments. Okay. While it gives you the reliability through the acknowledgement number. It gives the reliability through the acknowledgement number. Right? Acknowledgement number ki wajah se you get the reliability. I hope you understand these things. The size of the TCP header by default is 20 bytes, which is equal to 5 words. Right? We have covered all of this, but still, if you have any question, I will be happy to respond. The next topic which we covered was the first was the TCP and the second one was the UDP. UDP only provide you this multiplexing and demultiplexing and nothing more. But then Bashir asked the question that which is good? And the answer is none of them is good, nor any one of them is bad. That is your requirement which makes the protocol suitable for your application, right? So we have seen that, for example, if you go for the real-time applications, so here in the real-time applications, the important is the speed and not the reliability. So UDP is only of 8 bytes. So I can say as compared to 20 bytes, it is only 8 bytes. So it is smarter, it is short and perform the same task. So that's the reason the real-time applications like voice over IP, for example, or the video over IP or video on demand, they mostly uses the UDP protocol. While those protocols, those applications which require reliability, which require flow control and all of this, like FTP, SFTP, for example, HTTP, for example, HTTPS, for example, these all uses TCP. So I am unable to say that one is good and another is bad. Agar wo bad hoti, to definitely utha ke usko bahar phenk diya jata. So this is not the case. The case is that all are good, but it depends upon your requirement. Does it make sense, gentlemen? Okay. Yes, sir. Okay, nice. So our topic today is of the TCP server process, TCP server processes, right? So it may be, for example, if you are working with and we have also seen the port numbers, very important. So we have seen that in both the TCP and UDP, there is a 16-bit number, and this 16-bit number gives you 2 power 16, which is 65,535 different ports. We have seen also that these port numbers are divided into 3 different categories. Number 1, starting from 0 up to 1023, which we call as the well-known ports. Given to well-known applications. Then is the second one is from 1024 up to 49,151. They are called the registered ports.
and finally is the from 49,152 up to 65,535, which are known as the temporary ports or ephemeral ports, right? So I hope that you understand all of these stuff, and I have provided you the recorded lectures as well. So that makes me confident that you know all of these stuff which I just gave you just a recap, right? Now come to the topic, and the topic is TCP server processes. So each application, do you know what mean by a process? First of all, I should explain what mean by a process. Abbas, the process, whenever there is an application, and you start this application, so you can find that behind this application, a process, one or more processes will start. Like for example, if I do Alt Control Del and I go to the task manager, so you can see that number of processes are there. So for example, I'm using the Google Chrome. Yes. So I have a process here. 28 processes are there, which are because of the Google Chrome. Similarly, gentlemen, if I show you the Acrobat is also opened here. That's the reason it also has a process here. I'm using the WhatsApp. That's the reason it has the here. So do understand, like for example, I'm using the PowerPoint. PowerPoint is here. I'm using the Zoom. Zoom is here. So whenever you start any application, it creates a process. So TCP, whenever you start a process, a network application, here I give you the example of WhatsApp, for example, or Zoom. These are the network applications. Is it clear, Ilyas, Bashir, Arsalan? Yes, sir. Very nice. तो हम बात ये कर रहे थे कि जब भी TCP, अब सर्वर क्या है? Server is also an application. What is a server? Server is an application. What is a server? Server is an application. Like for example, DNS. The DNS has a server and DNS has a client. And I explained to you the difference between the server and the client. These are both of the application, nothing more. हमारा normal behavior ये होता है कि हम किसी machine को कह देते हैं कि server, but I don't call it like this. I call it that there is a application which is residing on a machine. That's the reason you are calling that machine a server, but not essential. But let me explain to you first that what is a server. Server is an application which provides services to others. दूसरों को क्या provide करता है? Services provide करता है. So for example, if you are using a DHCP server, so this is always available and listening. So whenever a client comes, it requests to this listening socket or to this listening service or to this listening server. And then it complete your request. Like for example, you need an IP address, you need a subnet mask, you need a gateway, you need a DNS, blah, blah, a domain name. All of them is provided to you by the DHCP. Does it make sense, Abbas? समझ आ रही? Okay. इसी तरह जैसे मैंने कहा, एक तरफ सर्वर, दूसरी तरफ क्लाइंट. So TCP will be working on both the server and the client. Like for example, I have an FTP. So I have an FTP server and then I have an FTP client. So this client will request the server to upload or download some file. Like here you can see on my desktop, here
I have a TFTP. This is again an FTP, but quite FTP is file transfer protocol. But this is the trivial FTP, TFTP, which doesn't use the TCP, but it is also a server. So because I have installed this application on my machine, that's the reason I call this machine as a TFTP server. If you install, for example, an Apache, so I will call this machine as Apache is an application. I will call this machine as a web server. So it depends upon the application. If you are installing an IIS server, I will call it a server. You got my point? बात समझ आ रही है? तो gentlemen, हम बात कर रहे हैं कि each application process running on the server is configured to use a port number. तो अभी मैंने बात की कि हर एक application जो कि network application that must be using any one of these ports. Either the well-known, like email server, that uses port number 25. If it is an FTP, 2021, port number 20 and port number 21. If you are using the SSH, port number 23. So it depends. So these well-known ports are given to the well-known application. But if your application is not well-known, but you want that its port number should not change. Like I give the example of your AAA server of Radius server or AAA server of Cisco, whose port number is 1812, registered. It is outside this range. Similarly, when I showed you the net stack, if you remember, all the port numbers from my end, because I'm not a server, I'm a client. So mostly these temporary ports are given used by the client. You got the point? So gentlemen, an individual server cannot have two services assigned to the same port. Very right. एक ही port पे दो services नहीं. Otherwise their data will mix. If Abbas two ports, for example, a single port is being used by two applications. कैसे ये काम करते हैं? Let me explain to you. Let me explain to you. If I take here, let me take this. If I am here, control new. So how it works, let me explain. G. So this is your application layer. This is your application layer. G. This is your application layer. Okay, this is your application layer. Multiple applications are there. For example, app 1, app 2, app 3, app 4. And there are the ports here, which are, if it is a TCP or a UDP, it has around 65,000, more than 65,000 ports. So how it works? Like, for example, if the single port is being used by two applications, what will happen? This TCP will give this TCP will give the packet back to the same port. Now, how it will be recognized that it should go to A1 or A2? बात समझ आ रही है ना? मतलब मुमकिन ही नहीं है, जब इस पोर्ट पे आपने भेज दिया तो वो तो फिर इस पोर्ट की मर्जी है, जिसको भी दे दे. तो लाजमी तौर पे हो सकता है A1 की A2 को दिए जा रहे हो, A2 के A1 को दिए जा रहे हो. It will become everything as garbage. Abbas is not convinced. Convinced? So, gentlemen, here is that's the reason I am saying that if it is a TCP, every port is coming from different application. And similarly, it will go back. So, for example, here is the A1,
A11, A111. So these three applications are giving its data to TCP with multiplex and send it to the network layer. Right? When the data comes back from the application layer, what happens? It is something like this, that data is coming back. It will check to which port I should give. For example, port number 50, 51, 52. So they are separate. So each process belongs to a specific port. So that is something which need to be explained and understandable, that individual server, which is an application, cannot have two services assigned to the same port within the same transport layer service. Make sense? Okay. An active server application means the one which is listening, which is not dead, which is running. So an active application server assigned to a specific port is considered open. और साइबर सिक्योरिटी में हम यही ओपन पोर्ट्स फॉर अटैकिंग ढूंढते हैं. हम यही चीज, क्योंकि लाजमी तौर पे जो सर्वर जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं, वो सर्वर तो हो सकता है जर्मनी में पड़ा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हुआ है, न्यूजीलैंड में पड़ा हुआ है, और हम ये तो नहीं कह सकते उसकी एम्बेसी को कि जी आप हमें वीजा दें, हम आपके सर्वर को जाके हमने हैक करना है, हमने वहां से डेटा चोरी करना है, या हमने आपके सर्वर को खराब करना है, हमने उसको रैंसम करना है, हमें इजाजत दें कि हमें वीजा दें कि हम वहां चले जाएं. कहेंगे नहीं. दैट इज द रीजन. हम यहां से बैठ के फाइंड करेंगे कि इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशन चल रही है, और वो हमें इससे पता चलता है कि हम उसकी ओपन पोर्ट्स, टीसीपी और यूडीपी ओपन पोर्ट्स सर्च करते हैं. बात समझ आ रही? Which means that the transport layer accepts and processes segments addressed to that port. So an incoming client request addressed to the correct socket. Socket means I have explained four things: source port, destination port, source IP, destination IP. This tuple makes the socket. This tuple makes the socket. Is accepted and the data is passed to the server application. Got the point? Now I explain you the three-way handshake, that how a connection is established between a client and a server or two applications. So I told you that that is done through a three-way handshake. What is the three-way handshake? Number one, Abbas, there is a sync packet. Do you remember? I taught you the packet header, TCP packet header, and in the packet header there were the flags, 6 flags, and among them one of the flag was representing the sync, one was representing the ACK. So I need here only 2, although we have seen the fin, reset, urgent, very nice. ठीक है ना? तो gentlemen, here we are talking about that if, for example, your machine, instead of A, I am writing your machine, and here I write the target machine, which may be Facebook, for example, web server of the Facebook. So what you do? You want to make a connection with the target, so you send him a sync. SYN, sync. What happens then? That you give him any sequence number. Any sequence number. In this example, he has taken the sequence number as 100. Not must. It may be 200. It may be Z1. So then, and it gives you the flag as sync. I just explained sync flag, which tells to the destination, the target, that this flag tells the target that somebody wants to talk to you. Then that becomes number one. I said three-way handshake.
this is number one. Then what happened? Definitely the destination send you back. The destination send you back what? The destination send you okay, what it send you? It sends his willingness, and that willingness comes from the acknowledgement. So if the sequence number was 100, it will make the sequence number as 101, any one greater. And then it means that I am willing to accept your data. But then I have to send you data as well. So it sends its own ACK as well. Sorry, its own sync as well. Its own sync as well. It sends its own sync as well with, for example, like a sequence number 500. Anyway. So in this example, he is taking the sequence number as 300 and the acknowledgement number as 101. So it makes two flags now set, the sync one and the ACK one. Sync ACK, two flags set. And this packet is sent, so it becomes number 2, step number 2 of the three-way handshake. And then what happens? That इसने तो sync भेजा, इसको acknowledgement मिल गई, इसका मतलब इसका काम तो complete हो गया, your machine का मसला तो resolve हो गया कि you can send and you will be receiving. But इस मशीन को ये नहीं पता चला कि इसका sync इसको मिला है कि नहीं मिला, और क्या ये भी जवाब देगा कि नहीं देगा. इस वजह से ये अपना acknowledgement, क्योंकि इसने acknowledgement number 300 sync number 300 यूज किया था, ये acknowledgement number 301 करके इसको शो करेगा कि जो आपने सीक्वेंस नंबर 300 भेजा था, जो कि acknowledgement थी, I am acknowledging it. इसका मतलब कि अब ये भी बात करना, जवाब देने का इसने मान लिया है कि मैं भी आपको जवाब दूंगा. श्वेत जी. जी बिल्कुल. इसको कहते हैं, बाजू का हम ये अपने डेटा के साथ भी भेज देते हैं. इसको कहते हैं पिगी बैक, किसी के कंधे पे बैठ के चला जाना. यू गॉट द आंसर? ओके नाइस. अब देखिए यही काम हम ये पोर्ट्स ओपन हम ढूंढना चाहते हैं ना, हम क्या भेजते हैं? हम सिर्फ सिंक भेजते हैं. हम सिर्फ सिंक भेजते हैं. वो हमें क्या भेजेगा? सिंक और एक्, सिंक प्लस एक्. बस इससे हमें पता चल गया कि यहां पे कोई पोर्ट खुली है जिसने हमें जवाब दिया है. फिर आगे हम एक् नहीं करते, कनेक्शन पूरा नहीं करते, लेकिन हमें ये पता चल जाती है कि पोर्ट जिससे जवाब आया है वो खुली है. साइबर सिक्योरिटी में हम यही करते हैं. मतलब बाजू केसेस में तो हम उस मशीन को फाइंड करने के लिए ICMP भेजते हैं, पिंग भेजते हैं. बाजू का पिंग को उसने ब्लॉक किया होता है, लेकिन इसको तो नहीं ब्लॉक करेगा ना, अदरवाइज तो TCP ब्लॉक हो गया, पूरा का पूरा आधी से ज्यादा इंटरनेट उसने ब्लॉक कर दिया. तो हम उसके साथ ये खेल खेल के मालूम कर लेते हैं कि लाजमी तौर पे जब पोर्ट ओपन है तो कंप्यूटर तो ओपन है ही है. पास में जाएगा. ओके. स्पेशली नहीं, आप भी नहीं उसमें. जब हम अभी ये टूल एक इस्तेमाल कर रहे थे नेसेस, उसमें हमें पता चल जाता था कि जो भी हमारा टारगेट है उसमें कौन कौन सी ओपन पोर्ट्स हैं, कौन कौन सी वीकनेसेस हैं, और टूल ये भी बताता था कि इसको बंद करने के लिए कौन से मेथड्स हैं, या इन वल्नरेबिलिटीज को दोनों के लिए वो, क्योंकि टूल तो टूल है ना, किसी खास का तो नहीं है. ऑफेंसिव को भी हेल्प आउट करता है और डिफेंसिव को भी हेल्प आउट करता है. ऑफेंसिव को बताता है कि कौन सा इस्तेमाल करके टूल तुम इसको और इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हो, और डिफेंसिव वालों को बताता है कि कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करके इसको ब्लॉक कर सकते हो, मिटिगेट कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो. ठीक. सो वेरी, मतलब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि साइबर सिक्योरिटी
क्लाउड सिक्योरिटी, IoT सिक्योरिटी, फ्यूचर में, फ्यूचर का ये मतलब नहीं है कि 20 साल के बाद, दिस इज समथिंग वेरी नियर. ठीक है, ओके. इज देयर एनी क्वेश्चन फर्दर? Boss and Shoaib? No? Is there any question from the online students? No, sir. No? जी. Acknowledgement के साथ को सिर्फ कंट्रोल इंफॉर्मेशन है. जो आपका 20 बाइट्स का हेडर है, बस वो जा रहा है. Your sync, your fin, your reset, that is nothing but your only control information. सीक्वेंस नंबर में 1+ होगा. यही बात मैंने यहाँ पे अभी एक्सप्लेन भी की, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे सिंक नंबर इस्तेमाल किया गया. मिसाल के तौर पे यूर मशीन, अब्बास की मशीन ने सिंक नंबर भेजा 100. कहां पे भेजा? सीक्वेंस नंबर में. किसमें भेजा? सीक्वेंस नंबर में. अगर ये बात आपको थोड़ी सी तंग कर रही है तो मैं वापस जाके यहां पे ये चीज एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा. ये है जी आपका TCP. याद आ रहा है? तो आप जब एक भेजोगे तो क्या करोगे? कंट्रोल बिट में एक की बिट को 1 कर दोगे और सीक्वेंस नंबर जो तुम्हारा दिल चाहे. कोई रूल नहीं है कि बस यही, लेकिन इट शुड बी बिटवीन 1 and 65,535. लाजमी तौर पे आप एक सॉरी वो तो पोर्ट नंबर है. दिस नंबर इज 2 power 32, वेरी बिग नंबर. इट इज 4.3 billion एंड देन इट विल री. बात समझ आ रही है? अब्बास इज कंफ्यूज्ड. देखिए ना, आपने कोई मिसाल के तौर पे आप यूनिवर्सिटी में आए तो आपको इन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर दिया था ना. रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था? फॉर एग्जांपल 1 2 3 4. आपके बाद वाले को क्या दिया होगा? 1 2 3 4 5. उससे बाद वाले को क्या दिया होगा? 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल. यानी कि एक इंक्रीमेंटल वे था. यहां तो हम नॉर्मली ये स्टार्ट करते हैं कि 1 से स्टार्ट करो, लेकिन यहां पे हम कह रहे हैं कि उसकी भी रीजन है. हम कहते हैं नहीं, कोई भी रैंडम नंबर ले लो. तो मिसाल के तौर पे इसने कंट्रोल बिट को 1 किया और सीक्वेंस नंबर को 100 कर दिया. जब ये फ्रेम, ये सेगमेंट पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे, तो वो यहां इस कंट्रोल प्लेन को, कंट्रोल बिट को, यानी फ्लैग को देखकर उसको पता चल जाएगा कि दिस वाज अ सीक्वेंस नंबर. दैट इज द सिंक फ्लैग. दैट इज द सिंक फ्लैग विद द सीक्वेंस नंबर ऑफ 100. अब इसके लिए जरूरी है कि ये इसका एक्नॉलेजमेंट जब भेजे तो इंस्टेड ऑफ द कंट्रोल बिट for the sequence, for the sync, it should make the ACK flag equal to 1 और सीक्वेंस नंबर को कर दे 101, जो कि ये शो करे कि ये 100 का एक्नॉलेजमेंट है. एक्नॉलेजमेंट तो बहुत होंगी नेटवर्क में. तो फिर एक्नॉलेजमेंट हम पेमेंट करेंगे सर. जी यही बता रहा हूं कि देखिए, हम 100 से मैंने क्या कर दिया? 101. तो हमें कहा कि अब तुम्हें अगर कुछ भेजना है, तुमने स्टार्ट किया 100 से, अब तुम्हें कुछ भेजना है तो 101 से स्टार्ट करो. बात समझ आ गई जी? एनी अदर क्वेश्चन? फाइन, नाइस. तो हम यहां पे देख रहे थे कि ये तो हो गया 3-वे हैंडशेक से हमने क्या हासिल कर लिया? कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया. इसलिए हम कहते हैं कि TCP क्या है? कनेक्शन ओरिएंटेड है. कनेक्शन ओरिएंटेड है. अब आप 1 घंटा कनेक्शन चलाएं, आप 1 दिन कनेक्शन चलाएं, आप 1 महीना कनेक्शन चलाएं, नोबडी स्टॉप्स यू.
मतलब कोई टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं यू हैव टू कंप्लीट इट इन 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट का ये कनेक्शन नहीं, इट्स योर चॉइस, इट इज द चॉइस ऑफ द सेंडर एंड रिसीवर, ठीक है। लेकिन कभी तो आपको जरूरत होगा कि इस कनेक्शन को क्या कर दूं, टर्मिनेट कर दूं, इस कनेक्शन को क्या कर दूं, टर्मिनेट कर दूं। इसके लिए आप ये कह सकते हैं 4 प्रोसेसेस 4 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। जैसे वहां पे 3 स्टेप्स थे, यहां 4 स्टेप्स हैं। क्या स्टेप है, लाजमी तौर पे या तो योर मशीन कनेक्शन खत्म करना के में इंटरेस्टेड होगी या योर टारगेट मशीन, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो जो भी खत्म करना चाहे, खत्म करने का मतलब यह है कि ही डज नॉट, ही या दिस डिवाइस डज नॉट हैव एनी मोर डेटा टू सेंड। देखिए ये नहीं कह सकता कि आई डोंट हैव टू एनी डेटा बट आई विल नॉट एक्सेप्ट दी डेटा फ्रॉम यू एज वेल, क्योंकि लास्ट स्लाइड में इसने वादा किया हुआ है इस एक्नॉलेजमेंट से, इस एक्नॉलेजमेंट से इसने वादा किया है कि जब तक तुम भेजते रहोगे मैं रिसीव करता रहूंगा। ये एक्नॉलेजमेंट भेज के इसने ये बयान हल्फी दे दिया कि जब तक आप मुझे डेटा देते रहोगे मैं रिसीव करूंगा। इस एक्नॉलेजमेंट से, इस सिंक भेजने से इसने कहा कि मैं अपना डेटा भेज रहा हूं, मेरी मर्जी जब मैं इसको खत्म करना चाहूं। तो जब मेरे पास वो डेटा नहीं है, व्हाट नीड टू बी डन, क्लोज इट। तो इसके लिए जेंटलमैन हमने कहा कि जिसके पास भी डेटा नहीं होगा वो फिन फ्लैग को 1 कर देगा। इसका मतलब है कि आई डू नॉट हैव एनी डेटा फर्दर बट आई एम विलिंग टू रिसीव योर्स। जब इसने फिन रिसीव किया, इसका मतलब ये हुआ, ये जो मैं अभी आपको सेशन टर्मिनेशन बता रहा हूं दैट इज ग्रेसफुल। आपको एक लास्ट टाइम भी बताया था, अभी दोबारा बताता हूं कि एक नॉन ग्रेसफुल मेथड भी है रीसेट पेज के। तो हमने कहा कि जी हम आपके इस फिन जब रिसीव हुआ तो इससे टारगेट को पता चल गया कि इसके पास और डेटा नहीं है, सोर्स के पास, यूर सेल्फ के पास, ए के पास और डेटा नहीं है, इसने इसको एक्नॉलेज कर दिया। इसका मतलब है कि अब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जेंटलमैन कि ये, इसका मतलब ये हुआ कि ए फर्दर इसके बाद जब इसने ये फिन भेज दिया, ये और डेटा हरगिज नहीं भेजेगा, दिस इज नॉट अलाउड नाउ। इसको कहते हैं आप कनेक्शन हाफ क्लोज हो गया है, कनेक्शन क्या हो गया है, हाफ क्लोज हो गया, क्योंकि इसने अपनी मर्जी बता दी कि मैं और डेटा नहीं भेजना चाहता, मेरे पास है नहीं। ओके, अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टारगेट नहीं भेजेगा, टारगेट ने अपना फिन नहीं भेजा, टारगेट इज अलाउड टू सेंड, इसलिए मैंने कहा हाफ क्लोज हो गया है, यानी इधर से डेटा आएगा और ये रिसीव करेगा, क्योंकि इसके फिन का ये मतलब नहीं है कि मैं रिसीव नहीं करूंगा, फिन का मतलब ये है कि मैं और भेजूंगा नहीं, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया, इसके ऊपर क्रॉस लगा दिया। बात समझ आ गई? ओके, अब क्या हुआ, जब तक ये भेजना चाहे, 1 साल तक भेजना चाहे, दिस कनेक्शन विल रिमेन हाफ क्लोज, हाफ ओपन। लेकिन जब इसके पास भी फर्दर डेटा नहीं होगा, इट विल आल्सो सेंड ए फिन। तो देखिए 1 2 3, जब इसने फिन भेजा, अब इसका मतलब इसके पास भी फर्दर, अब इसके पास भी डेटा भेजने की इजाजत खत्म, इसके पास भी फिन भेजने के बाद फर्दर डेटा भेजने की इजाजत खत्म। अब जब ये फिन यहां पहुंचेगा तो लाजमी तौर पे इसको एक्नॉलेज करना है कि मुझे आपका फिन मिल गया है, और इस फिन का भी सीक्वेंस नंबर होगा। क्यों नहीं लगाया यहां पे अब्बास, इस वजह से नहीं लगाया कि दरमियान में डेटा था, स्टार्ट तो मैंने 100 से किया था, हो सकता है डेटा मैंने 1 लाख भेज दिया हो, तो 1,01,000 विल बिकम द फिन सीक्वेंस नंबर, और 1,02,000 विल बिकम द एक्नॉलेजमेंट ऑफ दिस फिन। यू गॉट माय पॉइंट? इसलिए यहां दिखाया नहीं गया। तो दिस 4 processes steps will be taken and finally A and B
will lose the connection. ठीक होगी बात? Gentlemen, this connection will close very soon, but I will send you the next link as quickly as possible, and please don't go away. Okay? तो मैंने कहा था ये तो ग्रेसफुल मेथड है जिसमें दोनों की मर्जियों का ख्याल रखा गया, लेकिन अगर आपका एक और फ्लैग भी है, रीसेट का फ्लैग, अगर आप वो भेज देते हैं तो बस का मतलब है कि वो नहीं भेजना चाहता, आप भी मत भेजो, बात खत्म, कनेक्शन रीसेट हो गया। और ये वाला काम हमेशा बनाया तो सारी ये चीजें अच्छी पर्पस के लिए गई थी, लेकिन इस्तेमाल कैसा हो, दैट डिपेंड्स। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि छुरी बनाई तो अच्छे पर्पस के लिए गई थी कि आप अपने घर पे उस छुरी से फ्रूट काटें, गोश्त काटें। ओके, सो हम बात कर रहे थे कि ये एक तरीका क्या है रीसेट का, जो कि नॉर्मली बनाया तो अच्छा कि अगर आप किसी चीज को जल्दी क्लोज करना चाहते हो तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू फिन एक्ट यू कैन गो डायरेक्टली टू सिंपल ओवर रीसेट। लेकिन इसका बुरा इस्तेमाल किया हुआ कि मैन इन द मिडल ने क्या किया कि वो दोनों के दरमियान में आ जाता है। मिसाल के तौर पे ये आप क्लाइंट हैं किसी बैंक के और ये आपका सर्वर है, कोई बैंक है, कनेक्शन इनके दरमियान में बना थ्रू दिस मैन इन द मिडल, और इसने क्या किया, इसको रीसेट भेज दिया। तो इसने तो समझा कि बैंक मुझसे और बात नहीं करना चाहता, थिंग इज क्लोज्ड। अब क्या होगा, ये इसके बिहाफ पे, इस क्लाइंट के बिहाफ पे इसके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देगा। तो अगेन इट इज एन अटैक। ठीक है, तो कहने का मकसद कि जो हैकर है, मैं उसको हैकर कहने के बजाय थ्रेट एक्टर कहूंगा। थ्रेट एक्टर इन्हीं चीजों को इस्तेमाल करके जो एग्जिस्टिंग है अपना मकसद हासिल करता है। You got the point? Okay. Now we come to वैसे मैंने बताया कि 3-way हैंडशेक का एनालिसिस अगर करें तो इट एस्टैब्लिशेस दैट द डेस्टिनेशन इज प्रेजेंट। जब एक आपके पास आ जाता है, इसका मतलब है कि आपने सिंक भेजा, आपको वापस एक आ गया, इससे पता चला कि डेस्टिनेशन जिंदा है, नेटवर्क जिंदा है, पोर्ट खुला है, ओपन है। It verifies that the destination device has an active service. Active service पता चलती है पोर्ट नंबर से। किस चीज से पता चलती है? बशीर अरसलान, आपके एक्टिव सर्विस का पता कहां से चलता है? फ्रॉम द ओपन पोर्ट। ये आपको बताती है कि वहां पे कोई सर्विस मौजूद है। And is accepting request on the destination port number that is initiating client intent to use. And number 3, it informs the destination device that the source intend to establish a communication session with you. तो ये 3 काम हैं जो कि 3-way हैंडशेक से होते हैं। एक तो पता चलता है कि वो डिवाइस नेटवर्क पे मौजूद है, उस पे वाकई वो एक्टिव सर्विस मौजूद है, और इससे पता चलता है कि डेस्टिनेशन को कि उससे कोई बात करना चाह रहा। तो कहते हैं आफ्टर द कम्युनिकेशन इज कंप्लीटेड द सेशंस आर क्लोज्ड। अभी मैंने 4 स्टेप्स बताए। एंड द कनेक्शन इज टर्मिनेटेड। द कनेक्शन एंड द सेशन मैकेनिज्म इनेबल्स रिलायबिलिटी फंक्शन। जब आप कनेक्शन बनाते हैं और जब जरूरत नहीं होती तो उसको टर्मिनेट करते हैं, ये बात आपकी गवर्न करती है कि यू हैव ए रिलायबिलिटी। ठीक हो गया। इसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आपके पास कंट्रोल बिट्स हैं और वो 6 हैं। अगर आप इसमें मिसाल के तौर पे सबके सब 0 हैं, इसका मतलब ना वो अर्जेंट है, ना एक है, ना पुश है, ना रीसेट है, ना सिंक है, ना फिन है। वो हो सकता है डेटा जा रहा है, डेटा के साथ ये लगा हुआ है। लेकिन अगर आपने उसको, अभी हमने बात की बहुत ज्यादा, हमने इसकी
इसकी, इसकी और इसकी बात की। तो लास्ट क्लास में हमने पुश और अर्जेंट की बात भी की थी, अर्जेंट पॉइंटर फील्ड सिग्निफिकेंट। लेकिन मोस्टली ये चार इस्तेमाल होते हैं जब भी कनेक्शन स्टार्ट होता है, यू सेंड सिंक, जब भी टर्मिनेट होता है, यू सेंड इट फिन। जबकि एक्नॉलेजमेंट ना सिर्फ सिंक और फिन का होता है बल्कि आपके डेटा का भी होता है, तो इट इज यूज्ड टू मच, इट गिव यू रिलायबिलिटी। ठीक है, एंड रीसेट मैंने बताया, रीसेट द कनेक्शन, ओके, रीसेट द कनेक्शन या व्हेन द एरर और a timeout occurs। क्लियर? तो बनाया तो अच्छे पर्पस के लिए गया, लेकिन बुरा इस्तेमाल भी पॉसिबल है। देन वी इस पे मैंने, जैसे मैंने आपको बार बार कहता हूं कि जितना मैं आपको पढ़ाता हूं इसके मुकाबले में नेट अकेड के ऊपर उन्होंने इसकी वीडियोस बना के आपके लिए रखी हुई है। तो आपके पास डेफिनेटली, मैं ये तो नहीं हूं, अगर टाइम हो, स्टूडेंट के पास टाइम नहीं होगा तो किसके पास होगा? तो आपके लिए that is very very interesting and important, that should go to this site, to this netacad.com, and watch this video to understand the three-way handshake and the 4 steps termination process. ठीक है बॉस? कोई क्वेश्चन? No? Okay. Then we come to the reliability and flow control, the two important aspects of TCP protocol, which are not available in the UDP. UDP doesn't offer you reliability and UDP doesn't offer you the flow control. First of all, I should tell you the definitions of these two terms and then explain how it is implemented by the TCP. How it is implemented by the TCP. By reliability means that, for example, you are in Peshawar here, and your destination is in, for example, Australia, Auckland, New Zealand, anywhere in the world. So your application wants that all the packets, corrupt-free packets, should arrive at the destination. That is the source, and here the destination. So who will govern this? कि जितने you have sent, for example, 1 billion packets, 1 billion bytes, तो इतनी बड़ी बात नहीं है, हम बिलियंस में करते हैं। हम बाज़ औक़ात ऐसी फाइलें भी अपलोड और डाउनलोड करते हैं जिनका साइज गीगाबाइट्स में होता है। स्पेशली जैसे कि आज अब्बास ने भी इस पे बात की कि जी यू वांट टू बी इन द साइबर एरिया, और जब साइबर पे आपको करना होता है तो हमें उस वक्त एक नेटवर्क चाहिए होता है। अब हम साइबर की जो प्रैक्टिस है वो हम मिसाल के तौर पे फेसबुक पे तो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने फेसबुक पे किया तो हमें FIA वाले आके उठा ले जाएंगे। इवन अगर हमने UET पे किया, हमने यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पे किया, हमने बाचा खान पे किया, कहीं भी किया, दैट विल बिकम टू सीरियस फॉर अस। हम क्या करते हैं, हम वर्चुअल मशीन्स अपने ही मशीन के ऊपर बना लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप यहां पे देखें, अगर आप यहां पे देखें तो मैंने कितनी मशीन्स इंप्लीमेंट की हुई हैं इस वक्त, आप देख सकते हैं। इस एक मशीन के ऊपर 1, 2, 3, 4 और 5 और एक वर्ड भी, एक विंडोज भी है। तो टोटल कितनी मशीनें इस पे, एक मशीन पे चल रही हैं? 6 मशीनें। साइबर ऑप्स वर्क स्टेशन, देखिए साइबर ऑप वर्क स्टेशन, देन इज द साइबर ऑप्स सिक्योरिटी ओनियन, दिस इज साइबर ऑप वर्क स्टेशन which is a variation of Arch Linux operating system. Then is Security Onion, which is Ubuntu basically. Then is the Ubuntu. Then is the Kali, which is on Debian. And then the Metaexploitable, which is on again Ubuntu. तो 5 मशीन ये और ये 6 मशीनें चल रही हैं। तो मेरे लिए किसी भी जगह पे एक
इन्वायरमेंट क्रिएट करना आसान हो जाता है। यानी हम दो तरीके, या तो हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं या नेट के ऊपर ऐसी साइट्स मौजूद है जो कि हमारे ही लर्निंग के लिए हैं, तो हम स्टूडेंट्स को वो एड्रेसेस बता देते हैं कि ये टास्क, और उसकी हमें पहले से वीकनेसेस भी पता होती हैं। हम बच्चे को कहते हैं कि हमें पता है किसकी वीकनेसेस हैं, निकालो। अगर वो सारी निकाल लेता है इसका मतलब वो एक्सपर्ट हो गया। कल वो लाजमी तौर पे फिर किसी सही साइट पे भी काम करेगा तो उसको मसला नहीं होगा। तो कहने का मकसद है कि ये मशीनें इंस्टॉल करते वक्त इनका साइज बाज़ औक़ात कोई 3 से 4 गीगाबाइट्स के बराबर होता है, तो आपने 4 गीगाबाइट्स को डाउनलोड करना होता है। तो इसलिए इस गीगा के टर्म जो मैंने इस्तेमाल की, इससे डरना हरगिज नहीं है कि यू आर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग गीगाबाइट्स। अब क्या हुआ, आप चाहते हैं कि इनमें से कोई एक बिट भी करप्ट ना हो। लाजमी तो हमें पता है कि ये नेटवर्क दरमियान में लॉसी नेटवर्क है। ये कौन सा नेटवर्क है? ये लॉसी नेटवर्क है। इसमें अब्बास नुकसान हो सकता है, पैकेट करप्ट हो सकता है, पैकेट ड्रॉप किया जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि डेस्टिनेशन को ये एक माहौल मिले कि उसकी कोई बिट्स, कोई बाइट जाया हरगिज नहीं होगी। This phenomenon is called reliability, and that is achieved, as I said, by using the sequence number and the acknowledgement. These two items are used to give you reliability. जब आप किसी चीज को एक्नॉलेज नहीं करेगी, इसका मतलब वो इसको नहीं मिली, इसका मतलब कि सोर्स को दोबारा भेजनी पड़ेगी। Got it? Very nice. इसके बाद है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि आपका डेस्टिनेशन, ठीक है, डेस्टिनेशन ये है, इट माइट बी बिजी। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी को मेरे ऑफिस आए और मैं लेट कर अभी कोई आ जाता है, तो व्हाट आई एम बिजी, मैं उससे क्या कहूंगा? वेट, स्लो डाउन। तो दिस इज समथिंग द फ्लो कंट्रोल। जैसे मैंने आपको बार बार कहता हूं, इफ आई वांट टू मेक दिस फैन स्लो और फास्ट, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंट्रोलिंग द करंट, द फ्लो ऑफ करंट टू दिस डिवाइस। दिस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। तो बाज़ औक़ात आपका डेस्टिनेशन में भी बिजी और मे बी यूजिंग many other processes. So at that time, what it can say, it can tell the source slow down, and that is done, if you remember, by using the windows. ठीक है साजिद? वालेकुम अस्सलाम, बहुत लेट। चलें, हम ये कह सकते हैं अगली क्लास के लिए जल्दी। एनीहाउ, सो जैसे मैंने कहा कि रिलायबिलिटी क्या है, एक तो गारंटी और एक ऑर्डर डिलीवरी। ये दो चीजें जब मिल जाएं, गारंटी हो कि पैकेट आपका अगर कोई गिरा भी है तो आपको पहुंचाया जाएगा, और उनका ये नहीं कि अलागी तौर पे भी मैंने कहा 1 बिलियन पैकेट्स आपने भेजे, तो पैकेट नंबर 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गया, एंड सो ऑन अप टू 1 बिलियन। सो ये सब के सब पहुंचेंगे, और एप्लीकेशन को, क्योंकि नेटवर्क कुछ इस तरह की चीज है, नेटवर्क सर्किट स्विच नहीं है, पैकेट स्विच्ड है। सर्किट में क्या होता है बताता चलूं, सर्किट स्विचिंग which is being used by your PSTN, for example, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क का नाम तो सुना है ना, दैट इज यूजिंग सर्किट स्विच। इसमें क्या होता है, जब भी कोई सोर्स किसी डेस्टिनेशन से बात करना चाहती है तो पहले एक 2 वे, दो तरफा रास्ता बनाया जाता है, फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन and from the destination to the source. We call them channels. Channel 1 for example outgoing, and channel 2 for incoming. इसलिए अगर एक का आपका
आपका जो मैसेज है वो एक रास्ता जब उसने ले लिया, वो रास्ता पूरी इस कॉल के दौरान तब्दील, तो इसलिए यहाँ पे ऑर्डर अनऑर्डर की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपका पैकेट स्विच जो है वो कोई इस किस्म का काम नहीं करता। वो देखता है जो भी अवेलेबल है डाल दो। मिसाल के तौर पे अगर आपने यहां से पहला पैकेट दिया, आपने यहां से पहला पैकेट दिया, यहां से हो सकता है वो इस रास्ते पे डाल दे। अगला पैकेट आपने दिया तो उसने ये लेट करें कि ये मशीन डाउन हो गई, इसको पता चला इसने अगला पैकेट यहां से दे दिया, तो और हो सकता है कि आकर ये रास्ता डाउन हो तो ये पैकेट यहां से होकर जाए। तो देखें इसने लंबा रास्ता लिया, हो सकता है ये पहला पैकेट था, ये दूसरा था, तो दूसरा पहले पहुंच सकता है। यानी इस नेटवर्क के अंदर अनऑर्डर्ड हो सकता है, इस पैकेट इस नेटवर्क के अंदर अनऑर्डर्ड हो सकता है। लेकिन डेस्टिनेशन पे टीसीपी मौजूद है, जिसका काम यह है कि इसको ऑर्डर करके एप्लीकेशन के हवाले करें। कुछ बात समझ आ रही? ठीक है ना? जैसे बिल्कुल उसी तरह है ना कि जिस तरह लेट करें यहां पे सीरियल नंबर लगे हुए हों 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन फॉर द स्टूडेंट्स, तो जो भी आएगा वो अपने सीक्वेंस पे जाके बैठेगा, और जो लेट आएगा उसके लिए सीट खाली है वो उसको फिल करेंगे, और फिर टीचर आ जाएगा, टीचर को लगेगा सारे स्टूडेंट सीक्वेंस में बैठे हुए हैं। गॉट द पॉइंट? तो कम लेट मी गो बैक। तो कहता है टीसीपी, हमारा टॉपिक क्या है? गारंटी, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में कौन सी दो बातें? गारंटी, नंबर 1 गारंटी GUARANTEE, और नंबर 2 ऑर्डर डिलीवरी। ये दो चीजें अगर हो जाएं तो वी कॉल इट रिलायबिलिटी। So TCP can also help maintain the flow of packets so that device does not become overloaded. कौन सी डिवाइस? एंड डिवाइस, डेस्टिनेशन डिवाइस। वो समझती है कि मैं इसके पैकेट नहीं कर सकते, उसका बफर कम है, उसकी प्रोसेसिंग पावर कम है, भेजने वाले की ज्यादा है, उसको कहे भाई आराम से। जैसे देखिए ना कभी क्लास हो रही है, अगर आते ही साजिद जो है वो क्वेश्चंस करना शुरू कर दे, मेरी स्पीड क्या हो जाएगी? चेक हो जाएगी, यानी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं आ रही तो आई कैन मूव फास्टर। सो कहते हैं देयर मे बी टाइम्स व्हेन टीसीपी सेगमेंट डू नॉट अराइव एट द डेस्टिनेशन और आउट ऑफ ऑर्डर है, आउट ऑफ ऑर्डर है। तो टीसीपी क्योंकि सीक्वेंस नंबर लगे हुए हैं, हर एक के ऊपर सीक्वेंस नंबर लगा हुआ है, उसके मुताबिक उसको किया जाएगा, तो अनऑर्डर्ड विल बिकम ऑर्डर्ड। All the data must be received and the data in these segments must be reassembled in a proper order, in the original order. Sequence numbers are assigned in the header of each packet to achieve this goal. तो बस हर एक पैकेट के, अभी हमने देखा कि जब भी आप कोई, चाहे आप कोई कंट्रोल भेजें, यानी सीक्वेंस नंबर सिंक भेजें, रीसेट भेजें, फिन भेजें, एग भेजें, सीक्वेंस नंबर होगा, और अगर डेटा भेजें तब भी सीक्वेंस नंबर है। तो हर चीज का क्योंकि सीक्वेंस नंबर है, इसलिए अगर कोई नहीं पहुंचा तो एक नहीं आएगी। एक नहीं आई तो समझ लो रास्ते में गिर गया है, ये करप्ट हो चुका है। पहुंचा तो है लेकिन वो नहीं है जो कि आपने भेजा है, दोबारा भेज दिया जाएगा, इसलिए गारंटी इंश्योर हो जाएगी। और अगर आगे पीछे तो टीसीपी उनको ऑर्डर करके ऊपर देगा, तो ऊपर एप्लीकेशन को ये एहसास होगा कि चीज जो आई है वो ऑर्डर्ड है। क्लियर? इसके साथ ही देखें यहां पे भी यही चीज दिखाई जा रही है कि भेजने वाले ने 1 से 6 तक सेगमेंट भेजे, ऑर्डर्ड है। 1 भेजा, फिर 2 भेजा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6।
लेकिन जब उसके बाद पहुंचे तो पहले 1 पहुंचा, फिर 2 पहुंचा और फिर सबसे आखिर वाला पहुंच गया। 6, 5, 4, 3 ऑन ऑर्डर हो गए। नाउ दिस इज द जॉब ऑफ द टीसीपी के 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 और 6 करके और फिर इस एप्लीकेशन के हवाले कर थ्रू द पोर्ट। Here comes the role of the TCP to make it ordered. Clear? इसके बाद बार बार कहता हूं कि जेंटलमैन एक बेहतरीन है ये हमारे पास तोहफा सिस्को का नेटकैट, जिसके ऊपर ये जो बातें भी हम कर रहे हैं इसकी वीडियोस पड़ी हैं। जस्ट गो थ्रू दैम, ठीक है? एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन कम बैक टू मी, क्योंकि उसमें बस हर चीज अच्छी है, एक चीज बुरी है, वो जवाब नहीं दे सकता। बट टू गिव यू द रिस्पॉन्स आई एम हियर। बाकी इट इज वेरी नाइस, कोई इसमें मसला नहीं है टू स्टडी फ्रॉम द नेटकैट। बस एक तो वो आपको बताता जाएगा कि एज्यूम करके कि बस आप समझ रहे हैं, लेकिन अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रही तो आप उसको नहीं कह सकते रुको और मुझे दोबारा तो चले आप खुद रिवाइज कर लो, पीछे ले जाओ। लेकिन कहीं अगर आपका कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है वो फॉर दिस आई एम अवेलेबल, ठीक? सो जेंटलमैन यू कैन सी हियर कि आप ये एक्नॉलेज, ये रिलायबिलिटी, ये तो हमने अभी बात की लास्ट स्लाइड में अबाउट दी फ्लो कंट्रोल। यहां पे हम बात कर रहे हैं रिलायबिलिटी की, रिलायबिलिटी की। देखिए इसने भेजा सेगमेंट 1 2। सेगमेंट किसे कहते हैं? हर वो चीज जो कि टीसीपी टैकल करती है उसको सेगमेंट कहते हैं। हर जो भी एप्लीकेशन देता है टीसीपी को, टीसीपी अपना साथ लगा देती है हेडर। इस चीज का क्या नाम है? सेगमेंट। तो जेंटलमैन इस सोर्स ने डेस्टिनेशन को सेगमेंट 1 और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भेजे, लेकिन किसी भी वजह से मे भी नेटवर्क में कंजेशन आ गई थी, जिसकी वजह से ये 2 पैकेट लॉस हो गए। तो डेस्टिनेशन क्या करेगी? लाजमी तौर पर तो ये तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 भेज चुका है। ये सिंपल इसको खामोशी से इसको एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 भेज देगी। एक्नॉलेज 3 का मतलब है 3 इज द सीक्वेंस नंबर। इसका मतलब मुझे 1 और 2 मिल गए हैं, 3 से आप बिस्मिल्लाह करते। तो देखें इसने 3 से फिर शुरू हो गया, 3 भी भेजा, 4 भी भेजा। अब अगले को अगर देखें तो 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो इसको दोबारा मिले हुए थे, पहले से मिले हुए थे। These will be treated as duplicate for them। ये इसको ड्रॉप कर देगा क्योंकि ऑलरेडी इसको मिल चुके थे, और ये इसको 11 नंबर भेज देगा। जब इसने 3 भेजा, एक्नॉलेज किया, तो उसने 3, 4 भेजा और अगले भी भेजे, लेकिन क्योंकि इसको मिल चुके हुए थे इसने खामोशी से एक्नॉलेजमेंट 11 भेजी ताकि 12 से दोबारा से स्टार्ट हो जाए। तो ये क्या रिलायबिलिटी में देखें, पैकेट लॉस भी हुआ लेकिन इसको तो मिल गए हैं। दिस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। Abbas, is there any question? Okay, nice. Okay. अब यहां पे हम बात करना चाहते हैं about different types of acknowledgements. मोस्टली जो एक्नॉलेजमेंट इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, जैसे अभी मिसाल के तौर पे मुझे 1 to, मैंने तो भेजा 1 to 10, 1 to 10, लेकिन इसने एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 भेज दिया। इसका मतलब है कि इसको 1 2 मिल चुका है। लेट करो, अब आसानी कर लेते हैं, अगर ये 1 से 10 तक सब मिल चुके होते तो ये भेजता एक्नॉलेजमेंट 11। 11 का मतलब है कि 1 से 10 तक मुझे मिल चुके हैं, लेकिन इसने जो एक्नॉलेजमेंट सिर्फ 11 की भेजी, 11 भेजा है। 11 का मतलब है कि 10 मुझे मिला है। नहीं, अगर ये कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, इसका मतलब अप टू 10 मुझे मिला है। कम्युलेटिव का क्या मतलब है? अप टू। अदरवाइज अगर कम्युलेटिव ना होती तो फिर मुझे हर एक की 1 की भी भेजता, 2 की भी भेजता, 3 की भी भेजता, 4 की भी भेजता,
लॉट ऑफ कंट्रोल इंफॉर्मेशन। और अगर हर एक की भेजते हैं तो हम इसको कहते हैं सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट। तो जैसे देखें, इसने यहां पे भेजा, आपने 1 2 भेजा, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 भेजा। इसने क्या किया, इसने कहा कि जी एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 का मतलब है ये कम्युलेटिव हो गई कि मुझे 1 2 मिल चुका है। और फिर इसने सेलेक्टिव भेजा 5 to 10 का। इसका मतलब है मुझे 5 से लेकर 10 भी मिल चुके हैं। इसका मतलब है कि मुझे इस पहले से ये पता चला, इस पहले से ये पता चला, इस वैल्यू से ये पता चला कि 1 2 मिल चुके हैं, और इससे ये पता चला कि मुझे 5 to 10 भी मिल चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ 1 2 3 4 नहीं मिले। देखें, उसने 3 4 भेजा और साथ ही शुरू कर दिया 11 से, क्योंकि इसको 5 to 10 की सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट मिल चुकी है। और जब 11 12 को मिला तो उसने फिर कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट नंबर 13 भेज दी। अब आप मुझे ये बताएं कौन सा बेहतर है। देयर इज सम क्वेश्चन प्रोबेबली। सर ये बात तो पिछली स्लाइड में नहीं थी जी। पिछली स्लाइड में वी वर यूजिंग ओनली द कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट। कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट, इवन नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भी होती है। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट, सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट, जिसको पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट भी कहते हैं। तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्नॉलेजमेंट्स। The one which has been explained in this slide is the cumulative one, कि आपने 1 2 भेजा, अगला नहीं है, 3 4 नहीं है, ठीक है, आपको 3 4 नहीं मिला, तो आपने एक्नॉलेजमेंट नंबर 3 भेज के उसको बताया कि 1 2 मिला है, आगे नहीं है। फिर आपने 3 4 अप टू 10 भेजा, उसने 11 भेज दिया। तो इसने 11 का मतलब दिस इज कम्युलेटिव, कि 1 से लेकर 11 तक ऑल गुड, 1 to 10 ऑल गुड, दिस इज कम्युलेटिव। सेलेक्टिव का मतलब एक एक की बात करो। सेलेक्टिव की मतलब है एक एक की बात करो। क्या मेरी बात समझ आई बशीर को? शाबाश। एनीवन फ्रॉम दी बोथ ऑनलाइन एंड फिजिकल क्लासेस? जी जी सर, वेरी नाइस। तो बशीर, अब आप पे एक क्वेश्चन है, 3 लोग यहाँ हैं और 3 4 लोग उधर भी हैं, कौन सा तरीका बेहतर है? कम्युलेटिव की स्पीड तेज होगी, ओके। क्या ख्याल है? Selective is more reliable. कम्युलेटिव में एक दफा भेजो कि तो दूसरी बार फिर सेंड करता है, ये डिसएडवांटेज। ठीक है, ठीक है। तो सिंगल स्टेप तो नहीं है, लेकिन सिंपल है। और याद रखो कि जब भी आप कोई प्रोटोकॉल डिजाइन करते हो और वो सिंपल है, तो यू विल मोस्टली गो फॉर दैट। यहां पे क्या नुकसान हुआ, ये इसमें क्या फायदा था कि भाई 3 नहीं मिला, 4 नहीं मिला, मैंने फिर 3 से स्टार्ट ले लिया, 3 4 5 6 7 8 9 10 भेज दिया। लेकिन इसमें क्या मुझे तकलीफ हुई, इसमें मुझे जब उसने भेजा 3 तो मुझे पता चला 1 2 नहीं है। फिर उसने भेजा 5 to 10, इसका मतलब है कि 3 4 पे मैं पहले जाऊंगा, फिर मैं जंप करूंगा और 11 पे जाऊंगा। आई हैव टू कीप अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग कंप्लेक्सिटी एट द सोर्स, which will make the protocol hard to manage. एफिशिएंसी इसकी बेहतर है, कोई एक्स्ट्रा ट्रैफिक नहीं जा रही, एफिशिएंसी डेफिनेटली इसकी गुड है, लेकिन ओवर बर्डन है।
क्या कहना चाहते हो बशीर? दूसरे वाला, मेरी उर्दू बड़ी वीक है इस चीज में। दूसरे वाला, तो दूसरे वाला इज नॉट गुड, पहले वाला इज गुड बशीर। दूसरे वाला इज कॉम्प्लेक्स, दूसरे वाला इज कॉम्प्लेक्स, सीम्स लाइक इट इज गुड, लेकिन द कॉम्प्लेक्सिटी will make the sending machine difficult to manage. That is the reason the first one is mostly cumulative acknowledgement method is used. बात समझ आ रही है जी? सर इसमें ज्यादा बर्डन नहीं होता सर, इसमें ज्यादा बर्डन नहीं होता। दूसरे वाले में बर्डन ज्यादा है ना, कि अब आपको अपने पॉइंटर्स के साथ खेलना पड़ेगा, और अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो पॉइंटर्स के साथ खेलना, इट इज लॉट ऑफ जंप्स, इट इज लाइक गो टू फंक्शन इन ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, उसको निकाल दिया गया प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से ही, बिकॉज इट एड्स ए लॉट ऑफ प्रोसेसिंग बर्डन ऑन द प्रोसेसर। आप रैम में जंपे मार रहे होते हो, थिंग्स बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज। बात समझ आई बशीर? देखिए देखिए, जैसे आपको अभी यहाँ पे नजर आया कि आपने 1 2 जब उसने ये पे दिया तो आप समझ गए कि 3 4 नहीं है, फिर 3 4 के बाद आप 5 6 में नहीं गए, आपने सिर्फ इंक्रीमेंट नहीं किया, 3 आपको पहले ये सोचना है कि 2 दफा कंफ्यूज था। ओके, देखिए बात ये है बशीर, यहाँ पे क्या मसला है, आपको इसने ये बताया कि मुझे 2 मिल गए हैं। अगर ये होता कि 3 4 से स्टार्ट कर दो तो आप क्या करते? 3 4, फिर क्या करते? इंक्रीमेंट 5, इंक्रीमेंट 6, इंक्रीमेंट 7, और आप अगले अगले पॉइंट पे जाते जाते और जो आपका डेटा है आप डज करके नेटवर्क पे गिराते जाते। दैट इज वेरी सिंपल। अब आपको हर एक पैकेट भेजने के बाद, हर एक सेगमेंट भेजने के बाद ये खौफ है, ये डर है कि इंक्रीमेंट नहीं करना, सिर्फ आपने कहीं जंपें भी लगानी है। जैसे देखिए आपने यहाँ पे जंप लगाई, 3 4 भेजने के बाद आप 11 पे चले गए, आपने 5 भेजे तो इट वाज अ मिस्टेक। सो एवरी टाइम इन द प्रोग्रामिंग यू हैव टू टेक अ डिसीजन वेदर आई हैव टू इंक्रीमेंट और आई हैव टू जंप। इट मेक्स द प्रोग्रामिंग डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट, इट मेक्स द थिंग्स स्लोअर। जी अब बोलो बशीर। Shabash. Is there anything from anyone? Sir, please don't. दोनों को एक साथ कंपेयर दोनों को एक साथ, ओके, तो दोनों को एक साथ कंपेयर कर, मैंने दोबारा कर देता हूं कि अगर मैं ये मेथड लगा रहा हूं तो देखें, अगर इसने मुझे ये एक्ट दिया तो मैंने क्या किया, बस मुझे पता चल गया कि 2 तक इसको मिला है, मैंने अपनी रैम में नंबर लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि मेरे सेगमेंट पड़े हुए हैं रैम में, तीसरा है, फिर चौथा है, फिर 5वां, 6वां, मैंने बस सिंपल ये करना है कि हर पैकेट को उठाना है और दोबारा फेंक देना है नेटवर्क। नेटवर्क की बैंडविड्थ की कंजम्पशन कैसे है वो हम अलग क्वेश्चन है, लेकिन मेरे एंड पे चीजें आसान हो गई कि मुझे जस्ट ये कोई बताए कि कहां से शुरू करना है। जैसे आपको याद होगा कि जब आप स्कूल में थे तो बाज़ वक़्त आपको सवाल नहीं, कोई भी क्वेश्चन आपने तो रटा मारा होता था, तो आप मैडम को कहते थे या जो भी है, मैडम या सर, उसे कहते पहला लफ्ज बताओ, तो जो ही पहला लफ्ज बताते कहते सारा सवाल याद है जी, बस हो गया। तो दैट वाज सिंपल। लेकिन अगर क्योंकि रटा, नॉट अंडरस्टैंडिंग वाज नॉट देयर, लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि नहीं आपने पहले इधर जाना है, यहां तक लिखना है, फिर उसका आपने रुकना है, फिर आपने किसी दूसरे पेज पे जाना है, तो फिर आपके लिए मसला होता है कि जी आप किधर जाऊं। तो इस बार बार की अपने आप को रीऑर्डर करना, रीस्ट्रक्चर करना आपके डिवाइसेस के लिए मुश्किल था। अल्दो आपकी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन उससे बेहतर हो गई, लेकिन बैंडविड्थ हमारे पास बहुत है। अब बात समझ आई? अब कंपैरिजन समझ आया? जी सर, बिल्कुल, नाइस जी, नाइस। तो हम बात ये कर रहे हैं कि, और फिर वीडियो, तो वीडियो तो आपने देखनी है। फ्लो कंट्रोल पे आ जाता हूं
कि फ्लो कंट्रोल, क्योंकि दो चीजें मिलकर रिलायबिलिटी बनाती हैं, जैसे मैंने बताया है, वन इज दी फ्लो कंट्रोल एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, तो अब यहां पे हम आते हैं कि किस तरह टीसीपी साहब हमें क्या करके देता है, फ्लो कंट्रोल, और मैंने बताया दैट इज डन थ्रू दी विंडो साइज। अगर आपको याद नहीं है तो मैं वापस चला जाता हूं अपने हेडर के ऊपर, और हेडर में ये हेडर है, क्या आपको ये विंडो साइज नजर आ रहा है? हर चीज का मकसद है, अल्लाह ताला ने अपने कामों में, और इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने अपने कामों में, हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, बगैर मकसद के नहीं करता। देखिए, आपने देखा कंट्रोल बिट्स का अपना मकसद था, सीक्वेंस नंबर का अपना मकसद था, सोर्स पोर्ट का अपना मकसद था, डेस्टिनेशन का अपना मकसद था, हर चीज का अपना मकसद है। तो जेंटलमैन, यही बात यहाँ पे हम 48 नंबर स्लाइड पे कर रहे हैं, कि इस स्लाइड पे कर रहे हैं कि हमारा एक विंडो साइज है। तो जब आप 3 वे हैंडशेक कर रहे होते हैं, कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहे होते हैं, उस दौरान आप दोनों एक दूसरे के साथ एक विंडो साइज पे एग्री करते हैं। जैसे आप कोई चीज मार्केट से जाके खरीदते हो तो क्या होता है, आप उसके साथ एक एग्रीमेंट कर रहे होते हो कि जी मैं आपसे मिसाल के तौर पे 1 डजन लूंगा, 100 लूंगा, व्हाटएवर, या 1 दाना लूंगा, अकॉर्डिंगली आपका कनेक्शन बन जाता है। तो यहां पे भी वो कह रहा है कि ड्यूरिंग हैंडशेक विंडो साइज डिसाइड हो गया कि 10,000। इसका मतलब है कि मैं अप टू 10,000 तक जा सकता हूं, और वो मुझे रोक भी सकता है। किस तरह कि 10,000 तक मैं जाऊं और मुझे एक्नॉलेजमेंट ना भेजे, इसका मतलब ये हुआ कि मैं रुक जाऊंगा, मैं और नहीं भेज सकता। इसके अलावा एक और टर्म है जिसको कहते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज, एमएसएस। ये वैल्यू डिफाइन होती है आपके हार्डवेयर को देखकर। आपने अगर आपको याद हो तो मैंने आपके सामने इस नेटवर्क लेयर के नीचे एक डेटा लिंक लेयर भी रखी थी, और इसके अंदर मैंने 2 में इसको डिवाइड कर दिया था, लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड मैक लेयर। याद आ रहा है? मैंने कहा था ये सॉफ्टवेयर है जो कि अपर लेयर को बताती है कि नीचे की लेयर कितना बर्दाश्त कर सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने कहा था कि अगर मैक लेयर आपकी इथरनेट की है, और इथरनेट में भी लेगेसी इथरनेट है जिसका मैक्सिमम साइज 1500 बाइट्स हो सकता है, 18 बाइट्स ये अपने ऐड करेगा और 1518 हो जाते हैं। इसका मतलब कि अब इसको ऊपर से 1500 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो आपको पता हो गया कि 20 अगर टीसीपी है तो मैंने बताया 20 बाइट ये ऐड करेगा। अगर ये आईपी है, आईपी वर्जन 4 है, तो ये भी 20 बाइट्स ऐड करेगा। इसका मतलब है कि यहां से टीसीपी को ज्यादा से ज्यादा कितना भेजना चाहिए टू मेक दिस 1500, ताकि 1500 से किसी सूरत ज्यादा ना हो। कितने भेजे? एक 2 मिनट का वो ले रहा हूँ। यहाँ लाइट थोड़ी हो गई है, जनरेटर ऑन हो जाएगा तो जो लोकल हमारे ऑनलाइन लोग हैं उनको स्क्रीन पे भी दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जी, लाइट आ गई और चीजें बहाल हो गई। तो जेंटलमैन, मैं बात ये कर रहा था कि अब आपको पता चल गया कि इसको कहते हैं मैक्सिमम सेगमेंट साइज, एमएसएस। तो इट डिपेंड्स अपॉन द मैक लेयर कि मैक लेयर क्या बता रही है। अगर मैक लेयर में 2000 होता तो 1960 ये वैल्यू 40 कम कर लेना, सिंपल इज दिस। ठीक है ना? तो आपने देखा कि आपकी विंडो साइज डिस्क्राइब हुई कि वो कितनी है, 10,000। आपका मैक्सिमम सेगमेंट साइज हुआ कि जी 1460 बाइट से ज्यादा हरगिज नहीं, कम।
जी है, बताता हूं। MTU जो है, ये वैल्यू जो 1518 बनी थी, ये जो वैल्यू मैंने अभी बनाई थी, दिस इज कॉल्ड एज योर MTU। और जो चीज यहां से TCP ने दी, दिस इज कॉल्ड MSS। जो चीज यहां इसके साथ ये हेडर्स ऐड होकर जो चीज बनी, दिस इज कॉल्ड इन अदर वर्ड, MTU is a layer 2 concept, while MSS is a layer transport layer in layer 4 concept, but related। ठीक, ओके। तो हम बात कर रहे थे, देखिए आपने दो फ्रेम्स भेजे, 2 सेगमेंट भेजे। ज्यूम आपने पहले में भी 1460 और दूसरे में भी 1460 भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 2920 बाइट्स भेज दिए। अल्दो अगर ये एक्नॉलेज ना करे डेस्टिनेशन, तो इस पे पाबंदी साजिद नहीं है, क्योंकि इस पे इसके साथ ये एग्रीमेंट हुआ है कि 10,000 तक मुझे जाने की इजाजत दोगे। तो आपने देखा, लेकिन इसने चीजों को तेज करने के लिए यहां पे इसको 2921 भेज दिया। इसका मतलब अगले 10,000 के लिए रास्ते को खोल दिया। इसका मतलब यू वांट टू चीज थिंग्स फास्ट, फ्लो कंट्रोल। अगर ये ना भेजता, ये फिर भी अगले बाइट्स भेजता रहता। लेकिन अगर आप एक्नॉलेजमेंट दरम्यान में भेज देते हैं, तो यू आर वांट टू मेक इट फास्ट। और अगर आप नहीं भेजते तो 10,000 के बाद वो जाके रुक जाएगा। इवन आप इस दौरान भी, इस विंडो साइज पे कोई पुरानी आयत नहीं है कि 10,000 मस्ट है, इसको कम कर सकते हैं ताकि आप जल्दी उसके ऊपर अपनी नजर डेस्टिनेशन रख सके। इस बात समझ आई? और यहां पे देख लेते हैं। देखें जी, एक चीज है कनेक्शन, क्या है, कंजेशन अवॉइडेंस। ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क है जो कि TCP करता है। कंजेशन का मतलब क्या है, पहले ये क्लियर कर दूं। कंजेशन इज रिलेटेड टू दी बफर, टू द बफर। मिसाल के तौर पे यू कैन सी हियर द राउटर्स। आपका ये राउटर है, इसकी ये इंटरफेस है। इस इंटरफेस पे, हर एक इंटरफेस पे राउटर के बफर मौजूद है। हर एक इंटरफेस पे राउटर की क्या चीज मौजूद है, बफर। अब लेट करो ये बफर 1000 बाइट्स का है, चलिए 1000 किलो बाइट्स कह लें, चलिए 1000 किलो बाइट्स का। तो क्या होगा, कभी तो भरेगा ना। तो इन्फिनिटी तो मैंने नहीं कहा, इन्फिनिटी दुनिया में कोई चीज भी नहीं है। तो क्या होगा, दिस विल, a time may come that when this 1000 bytes, kilobytes will be there। अगर कोई फर्दर आते हैं तो क्या होगा, उसके साथ ड्रॉप हो जाएगा। जैसे यहां पे अगर 25 कुर्सियां हैं, अगर 25 लोग आते हैं तो नाइस, 26 आता है तो क्या होगा, जमीन पे बैठो या बाहर जाओ। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंजेशन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड कंजेशन। और इसको अवॉइड करना इज इंपॉर्टेंट। कैसे अवॉइड कर सकते हैं, वेरी सिंपल। अगर आप इसका फ्लो को स्लो करवा दो। ओके बशीर एंड एवरीवन, वी कंप्लीटेड। ओके, तो हमने यहां तक ये बात कर ली कि सेगमेंट 1 भेजा, 2 3 नहीं गया, हमने 4 सेगमेंट भेज दिया, इसने 2 की एक्नॉलेजमेंट कर दी, इसे 2 3 दोबारा भेज दिया गया। यू आपका, मैं क्लियर कर रहा था कि कंजेशन कहते किसमें, और ये भी हम अवॉइड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लो कंट्रोल फीचर ऑफ द TCP। कल इंशाल्लाह ताला विल बी स्टार्टिंग विद द UDP कम्युनिकेशन, और इसको आगे लेके चलेंगे, और उम्मीद करते हैं कल खत्म हो जाएगा चैप्टर और अगला शुरू भी हो जाएगा। और अभी मैं इसको क्लोज करता हूं, और दूसरा लिंक आपको स्विचिंग राउटिंग एंड वायरलेस एसेंशियल के ग्रुप के ऊपर भेजूंगा, और वहां से मैं अपना नया कोर्स स्टार्ट कर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कम अप, इफ यू डोंट हैव आई क्लोज द सेशन। नो क्वेश्चन?
चलिए I close here. Till then, Allah Hafiz. No question. ठीक है जी.